Today we are going to see noise and musical sound. Sound is due to some mechanical disturbance propagating through a medium. Material medium, we can say material medium, because sound propagate only through the material medium. In vacuum it will not propagate. It's important, it will propagate only through a material medium. That too, it is highest in the solids. The device producing mechanical disturbance is called as source of sound. The sound which produces the mechanical disturbance, because sound is a kind of a disturbance, we will say it is a mechanical disturbance propagating through a material medium, and the device which produces is called as source of sound. The sound produced from the different sources can be classified into two types. Actually, the sound is divided into two types. One is noise and second is musical sound. So noise is produced, noise we can hear, we can take the example of when we will stand in the traffic, various sound produced by the various vehicle which is standing there produces sound of different frequencies, and which create unpleasant effect to our ears, that we can term as noise. And musical sound means that sound which was produced by violin, harmonium, sitar, flute. This sound create a pleasant effect to our ears, and that sound is called as musical sound. So the distinction between these two is that one create unpleasant effect to our ears, and the other create very pleasant effect, and because of which we try to hear the same music again and again in a repeated mode, also musical sound, whereas we try to avoid noise. A non-periodic mechanical disturbances produces sound which appears discordant and unpleasant to the ears. The sound which is unpleasant to the ears is termed as noise. It is non-periodic in nature, and it is irregular, non-periodic and discontinuous in nature. It is of a very short duration, and it is an abrupt sound of complex in nature. Example, the sound produced on blowing of the horn. When you stand in a traffic, the blowing of the horn by different vehicles, it create unpleasant effect to the ears. That is example of a noise. Then firing of a gun on explosion. On throwing of a stone, you also find unpleasant effect when a stone is thrown on the tin sheet, etc., produces noise. It has no definite period or amplitude, and it is very irregular in nature. The sound produced by a periodic mechanical disturbance appears pleasant, continuous in nature and uniform on hearing. It is called as musical sound. जो साउंड जो पीरियोडिक मैकेनिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, और वो कैसा रहता है, नेचर कंटिन्यूस रहता है और अपने कानों में यूनिफॉर्मली हमें सुनाई आता है और कानों को बहुत अच्छा प्लीजेंट इफेक्ट देता है, उस साउंड को हम म्यूजिकल साउंड बोलते हैं. म्यूजिकल साउंड यानी जो फ्लूट क्रिएट करता है, बांसुरी क्रिएट करता है, हारमोनियम, वायलिन, ये हमारे कानों में हमें बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, तो उसे हम म्यूजिकल साउंड बोलते हैं. दस म्यूजिकल साउंड इज प्रोड्यूस बाय द पीरियोडिक, रेगुलर एंड कंटिन्यूस मैकेनिकल डिस्टर्बेंस. म्यूजिकल साउंड कैसा होता है, पीरियोडिक होता है, रेगुलर होता है, कंटिन्यूस मैकेनिकल डिस्टर्बेंस जो क्रिएट करता है साउंड को, उसे हम म्यूजिकल साउंड बोलते हैं. वेयर एज जो नॉन पीरियोडिक है, जो अभी हमने बताया डिसकंटिन्यूअस है, कैसे भी बजाया जाता है, उसे हम नॉइज बोलते हैं. यूजुअली हमें ट्रैफिक में सुनाई आता है, जब हम खड़े रहते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, वो सब लोग जब एट ए टाइम हॉर्न बजाते हैं तो हमारे कान को वो बिल्कुल अच्छा इफेक्ट नहीं देता है. सो सच साउंड इज कॉल्ड एज नॉइज. वेयर एज जो पीरियोडिक, रेगुलर एंड कंटिन्यूस मैकेनिकल डिस्टर्बेंस से क्रिएट होने वाला जो साउंड रहता है, दैट इज म्यूजिकल इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल, द साउंड प्रोड्यूस बाई ब्लोइंग इंटू एन ऑर्गन पाइप. ऑर्गन पाइप में से जब आवाज़ आती है तो वो हमारे कानों को अच्छा लगता है. प्लकिंग द स्ट्रिंग्स ऑफ सितार. सितार जब हम प्लक करते हैं तो एक अच्छा आवाज़ आता है, वो भी हमारे कानों को अच्छा लगता है. प्लेइंग अपॉन हारमोनियम. हारमोनियम से जो साउंड आता है वो भी हमारे कानों को अच्छा लगता है. इज़ ए म्यूजिकल साउंड. ये सारे एग्जाम्पल है म्यूजिकल साउंड को. एंड इवन ट्यूनिंग फोर्क जो क्रिएट करता है, अगर तुमने देखा होगा, ट्यूनिंग फोर्क जब वाइब्रेट करता है तो भी एक म्यूजिक क्रिएट होता है, एंड वो भी म्यूजिकल साउंड में के एग्जाम्पल में आता है.
दीज वेव्स, इनके म्यूजिकल जो साउंड रहता है उसमें जो वेव्स आता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर पीरियोडिक इन नेचर, they are regular, there is a regularity of the shape in shape as well as उसका जो एम्पलीट्यूड है उसमें भी एक रेगुलरिटी रहता है, फ्रीक्वेंसी भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में भी होता है. सो दिस आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द म्यूजिकल साउंड. ऑब्वियसली दिस वेव्स आर पीरियोडिक इन कैरेक्टर एंड दे हैव रेगुलरिटी ऑफ द शेप, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी. जितना ज़्यादा हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहेगा उतना ही साउंड हमें बहुत अच्छा ब्रिलियंट लगेगा, स्मूथ लगेगा एंड प्लीजेंट टू अवर ईयर्स. मोर द नंबर ऑफ हार्मोनिक प्रेजेंट इन ए साउंड प्रोड्यूसेस मोर इट विल बी ब्रिलियंट, स्मूथ एंड प्लीजेंट. ऑन द अदर हैंड द साउंड कंटेनिंग नो हार्मोनिक्स, अगर हार्मोनिक्स नहीं रहा तो अपीयर नहीं होगा, वो हमें डल लगेगा, नेजल लगेगा और अनप्लीजेंट टू अवर ईयर्स, हमारे कान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. तो जितना ज़्यादा हार्मोनिक्स रहेगा उतना ही मधुर साउंड रहेगा, अगर हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं रहा तो हमें उतना ही अनप्लीजेंट इफेक्ट रहेगा. It may be mentioned here that if a fundamental note of same frequency is produced by a closed organ pipe and a open organ pipe, the sound produced by them will be different. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने फंडामेंटल नोट में अगर हमने दो इंस्ट्रूमेंट बजाए, एक है क्लोज ऑर्गन पाइप और दूसरा है ओपन ऑर्गन पाइप, तो ये दोनों का जो साउंड रहेगा वो अलग अलग रहेगा.